स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू ह्यूमैनिटीज प्रो एंड आई एम मोहिनी अग्रवाल अगेन वेलकम्स यू ऑल। Hello students, how are you all? Welcome to Humanities Pro. I, Mohini Agarwal, welcomes you all. So student, today I want to discuss one sample paper with you all, and I find it very interesting, this sample paper, because it has a very new type of questions, and I have a set of question papers and discussed with you all also in my previous videos. But this question paper, I find it a little good because it has very different question, and then the difficulty level is also very nice. So let's start with a sample paper, and I hope your pre-boards are going well. अच्छे जा रहे हैं आप लोग के pre-boards। कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट मी, ठीक है? ऑन इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स आई टीच ह्यूमैनिटीज, ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी इज माय ब्रॉड डोमेन, एंड इसके साथ साथ भी लाइक आई टीच हिस्ट्री, sociology and political science also. So if any doubt in that subject also, you all can connect with me. Okay, drop me in the chat box any topic you want me to discuss. I will surely make a video and again upload in my channel. So let's start with this again paper. This paper I like it very much because इसमें बहुत अच्छे questions हैं और बहुत difficult questions भी मुझे कुछ कुछ लगे. Not difficult, if you are thorough with the concept, obviously you will not find it difficult, but yes, it has a very deep content. Okay, so let's start now. First, analyze your paper. Now what is this analyzing your paper? In this paper, it is a short video, so in this paper I will be discussing only from question number 1 to question number 21. Okay, so now you all know that 15 questions are coming in your boards of psychology paper of 1 marks. So again, make sure that you do not lose marks in this section, because this is a very important section. If your concepts are clear, if your chapters are clear, I can be very sure कि आप इतने marks यहाँ नहीं जाएंगे. ठीक है? And this is a 15 marks, like this is a very very sure 15 marks in the paper. ठीक है? Now next again is question number 16 to 21. अगेन लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों के अच्छे हो जाते हैं, बट अगर 16 टू 21 वाले जो क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां पर बहुत प्रिसाइज आंसर चलता है. सो इट हैज ओनली अगेन 30 to 40 words, and if you do not know what you have to write in this answer, you will lose marks, because again in the marking scheme they are looking for some separate marking like keywords, and if your answers do not have that keywords, ठीक है, you will again losing your marks, आपके marks कम आएंगे. ओके, सो अगेन वी कैन डू अगेन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि इसको कैसे लिखना है. एंड अगेन 2 मार्क्स के यहाँ पर 6 क्वेश्चन आते हैं, तो इट हैज 12 मार्क्स कंटेंट. ओके, सो 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 27. नो 27 के ये मार्क्स अगर हमारे सिक्योर हो जाए, ठीक है, तो हमारा पेपर आउट ऑफ 70 अपने आप अच्छा चला जाता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस आपको पता होता है कैसे लिखते हैं. ठीक है, मार्क्स जाते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन में, 1 मार्कर क्वेश्चन में, एंड इट हैज अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ राइटिंग. ठीक है, अगर आपने वो चीजें नहीं लिखी, आपके मार्क्स नहीं आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सी द क्वेश्चन नंबर 1. And obviously this is not a live class, but this is a like sample paper of my students only. This current year like only pre-boards 2 का sample paper है. So this is a very nice sample paper, I like it. So now see question number 1. Systematic desensitization begins with some form of word. Now systematic desensitization पहले तो आपको बड़ी जल्दी क्लिक होना चाहिए कि ये चैप्टर 5 से है. ठीक है, नाउ चैप्टर 5 इट इज अ फियर फोबियाज को हटाने का एक बिहेवियर टेक्निक. सो उसमें हमें क्या पढ़ा था? इट बिगिंस विद सम फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग. So this is the right answer. Again, if you have any doubt in one in any of my answer कि ma'am why is it so, you can comment me on. You can comment me in the like this video chat box, and again आप उसमें like जो भी आपका डाउट है I will surely कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ. So question number 1 answer is relaxation technique. Question number 2, ये मैंने कई बार बच्चों को बोला है कि डिसऑर्डर्स वाले चैप्टर से ये कंटेंट 1 मार्कर फॉर श्योर आएगा ही आएगा. अब इसमें पूछा है एंजाइटी डिसऑर्डर में बी कॉज ड्यू टू विच न्यूरोट्रांसमीटर. द आंसर इज गाबा. बट अगेन यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट इन स्पाइट ऑफ दिस, ठीक है, dopamine is responsible for schizophrenia and serotonin is responsible for your this depression.
ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 1 मार्क के क्वेश्चन फॉर श्योर आते हैं. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 द आंसर इज गाबा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 अगेन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन जब भी आप करिए बच्चों, ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप इसको करते हैं तो ये एक स्टेटमेंट है जिसमें आपका ये रीजन फिट होना चाहिए. अगर ये रीजन और स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है देन गो फॉर द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, दैट assertion A and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion A. Okay, but if you find that इधर because लगाने पर आपको ये रीजन बिल्कुल वैलिड जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, देन इट इज द ऑप्शन नंबर ए. Okay, that both A and R are true and R is the correct explanation of A. But again, if you find it कि A is not wrong or like R is wrong, then the option is very very clear कि R is false and A is true. And अगर वही उल्टा है कि assertion false है, reason true है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं. But again, बच्चे जो confuse होते हैं mostly वो A and B में होते हैं. So now get to the question. Social stress is induced externally and results from our interaction with other people. This statement is correct because social stress हमेशा बाहर से आता है. ठीक है, now reason क्या दिया है, ये बाहर से stress क्यों आता है, because social events like death, illness in the family, strained relationship, trouble with neighbors and some examples of social stresses. Yes, it is. So the answer will be A. Okay, that both statements are correct and R is the correct explanation of A. Question number 4. In which therapy the patients are taught skills such as candle making, paper bag making, and weaving. Now this is again from the chapter number 5. ठीक है, रिहेबिलिटेशन का ये लास्ट कंटेंट का क्वेश्चन है और ये मैंने अपने बच्चों को बताया हुआ है कि अगेन ये आते हैं. तो स्टूडेंट्स प्लीज फोकस ऑन ईच एंड एवरी लाइन. सो कैंडल मेकिंग, पेपर मेकिंग आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी है. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5. Nayantara is a very obedient and disciplined girl. Everyone says that she inherited and learned all these traits from her grandparents. Which one among the following influences attitude formation? Now, attitude formation में अगर grandparents से उसके like traits आ रहे हैं या उसको like कुछ मिल रहा है, तो it is what? It is obviously not a reference group, not a passive trait, it is a social environment. ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट से उसने इनहेरिट किया है, उसने देख के सीखा है, तो दिस इज ओबीडियंट एंड डिसिप्लिन. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 का बी इज द राइट आंसर. Then sixth is unhappiness, discomfort, anxiety, unrealized potential are seen all over the world is called what? Obviously this is psychological disorder, क्योंकि अगर आप अनहैप्पी हैं, ठीक है, डिस्कम्फर्ट हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं, तो ये सारे आपके रीजंस हैं फॉर द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ओके, सो दिस इज अगेन सिक्स्थ का सी. Then 7. These sources first strengthen the cognitive and affective components of attitude and subsequently they also affect the behavioral component. Now, please get to the chapter. यहाँ पर आपका cognitive affective component of attitude पूछा जा रहा है. तो attitude हमारा कौन से chapter को link करता है? Chapter 6. Okay? Now, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो सोर्सेज हैं जो आपके आउट ऑफ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो सबसे पहले आपके कॉग्निटिव, आपके जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर आपके इमोशनल कंपोनेंट दैट इज अफेक्टिव कंपोनेंट को अफेक्ट करता है और फिर वो आपको बिहेवियर में शो होने लगता है. तो द आंसर विल बी मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस. ना इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे. ठीक है, किसी बच्चों ने बोला पर्सनल एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस होगा, बट द आंसर इज ओनली मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस. एंड अगेन आप देख सकते हैं जब आप चैप्टर 6 खोलेंगे उसमें आप देखिए एटीट्यूड फॉर्मेशन का जो अगेन फैक्टर्स हैं उसमें ये मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस में सेम लाइन दी गई है. ठीक है, सो अगेन दैट इज व्हाई आई ऑलवेज इंसिस्ट ऑन दिस फैक्ट दैट ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वन मार्कर्स एंड दिस इज अ वेरी सिक्योर्ड मार्क्स. अगर आपको इसमें 15 में 15 आ जाते हैं, अगेन you are doing very good. Okay, then question number 8. According to the socio-cultural model, abnormal behavior is best understood in the light of the social and cultural forces that influence an individual. Which among the following factors are associated with it? Okay, now इसको थोड़ा सा समझिए. According to the socio-cultural model पूछा है. Now socio-cultural model abnormal behavior, again it is from the chapter 4. Okay, so now social and cultural forces में क्या क्या आता है? एसोसिएट नेटवर्क नहीं आता, हमने इसका कोई वर्ड ही नहीं पढ़ा. ठीक है, सोशल नेटवर्क्स आते हैं जैसे लेबलिंग जो हम करते हैं,
मेन की, वुमन की, ठीक है। सोसाइटल कंडीशन आती हैं कि अगेन नॉर्म्स आ जाते हैं सोसाइटल कंडीशन में, ठीक है। पर्सनलाइज कंडीशन नहीं आती हैं। सो नाउ गो फॉर द ऑप्शन 2 and 3. 2 and 3 is B option. This is the right answer. So this questions I find it very new. That's why I've shared with you all that again questions आ सकते हैं कहीं से भी, and again please make sure कि आपका each and every line should be very very thorough. Okay, now question number 9. Question number 9 says, in the following question, again, this is a assertion reasoning question. So, there are several psychological models which provide a psychological explanation of mental disorder. Yes, we have read so. Because psychological models में हमने 4 चीजें पढ़ी थी, ठीक है. It has this humanistic, existential, cognitive, behavioral, and again psychodynamic. ओके डॉट साइकोडायनेमिक हमारे कोर्स में ही नहीं है बट हमारे इस मॉडल में है. सो द रीजन दे हैव रिटन it include behavioral, cognitive, and humanistic existential model. Yes, this is the right answer. So option A is the right answer. Okay. Now, question number 10. Question number 10 is psychological attributes are involved in a very simple phenomena like time taken to react to the stimulus, reaction time, and also in the highly global concepts like happiness. Which among following is the first step towards understanding psychological attribute? Again, this is a very nice question from chapter 1 only. So this is assessment. ओके आप कोई भी चीज का पहले असेसमेंट ही करते हैं फॉर नोइंग एनीथिंग. इट इज अ फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग एनी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ओके इट इज रिटन इन योर बुक. सो अगेन दिस इज असेसमेंट. क्वेश्चन नंबर 11. Damini, a sales executive in the multi-brand showroom, has a convincing power to convince people to make their choice according to their need. She is also a highly rated worker there. Okay. Now, which type of intelligence she is? Obviously, अगर वो चीजें बेच रही है, वो बहुत अच्छी वर्कर है वहां पर, ठीक है, वो कन्विंस कर लेती है लोगों को, तो उसका अगेन लैंग्वेज वर्बल पावर बहुत अच्छा होगा. तो दिस विल बी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. ओके सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस. नाउ question number 12. Kamraj, a small Italy dosa vendor, sorry, who was running a shop in the government land. One day, the civic authority demolished his shop without prior notice. Despite this, he did not panic. Now, without prior notice, उसका shop demolish हो गया, ठीक है. वो वहां पर वेंडर था बट वो उसने पैनिक नहीं किया, रीबिल्ड किया शॉप को विथ ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड परमिशन. नाउ टाइप ए जो पर्सनालिटी होते हैं वो वर्कोहॉलिक तो होते हैं बट इजिली पैनिक कर जाते हैं, ठीक है. सो ये टाइप ए तो नहीं है. टाइप सी भी नहीं है क्योंकि टाइप सी में अगेन द पर्सन इज हाईली कोऑपरेटिव. माइट बी टाइप सी हो सकता है. No, it is not type C, it is type B, calm and composed personality. Okay, so this is type B personality and again the answer will be a D option, type B. क्योंकि type C भी personality जो होते हैं वो आपके अनअसर्टिव होते हैं और अगेन कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है, और अपनी जो नेगेटिव डिजायर्स या इमेजेस होती हैं वो कहीं ना कहीं सप्रेस करते रहते हैं. ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो दिस विल बी टाइप बी पर्सनालिटी. नाउ 13th क्वेश्चन. That is, these are the personal stresses we endure as individuals due to the happenings in our daily life. Which among the following are hazard events in the given option? ठीक है. now देखिए hazards का option क्या होता है, जो day to day again situations होती हैं जिसमें हम परेशान होते हैं और हमारी like day to day mental well-being कहीं ना कहीं disturb होती है. so calm surrounding is not a obviously option. quarrelsome neighbors it can be. then water shortage it can be. failing exams no, because आप हर रोज एग्जाम नहीं देते, ठीक है. सो सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर. तो इस तरीके से आप इस आंसर्स को कर सकते हैं, ठीक है. 14th क्वेश्चन. द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल. नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट वेरी मच क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, मैंने अभी तक किसी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं देखा, ठीक है. द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनिबिशन स्टेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस. नाउ टू म्यूचुअली अपोजिंग का मतलब ही होता है एकदम ऑपोजिट. अगर आप एक तरफ बहुत वरी हो रही है, आपको एंजाइटी हो रही है, तो दूसरा आपको टेक्निक होगा कि रिलैक्सेशन. तो ये दो ऑपोजिंग टेंडेंसीज हो जाती हैं, ठीक है. सो यहाँ पर रेसिप्रोकल इनिबिशन में जो हमने पढ़ा था वहां पर दो फोर्सेस कौन कौन से थे, एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, और एक एंजाइटिंग प्रोवोकिंग सीन होता है कि एक तरफ हमारा डर है और एक तरफ हमें संभालने के लिए उसको रिलैक्सेशन करना आता है, ठीक है. सो दिस विल बी 2 and 4. नाउ ऑप्शन इज 2 and 4, दैट इज ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है. 15th क्वेश्चन सी.
Tina is suffering from the mental disorder and her parents, although educated ones, but refer to an occult of medicine man for her daughter's treatment. Again, ये exorcism है, पढ़ते ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ये supernatural forces को बिलीव कर रहे हैं. So the option C is the right answer, that is exorcism. So this is how you do, and again you will secure your 15 marks. And again यहाँ पर अगर आप नहीं 15 मार्क्स का सिक्योर रखते हैं तो अगेन 14 आ जाए तो भी बहुत अच्छा, पर ये तभी आता है जब आपका पेपर का अगेन चैप्टर का हर कंटेंट क्लियर होता है. ठीक है, सो स्टिल वी हैव टाइम. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क फॉर योर अगेन डाउट्स एंड राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, यू कैन कॉल मी बिकॉज नंबर इज देयर. सो अगेन क्रैश कोर्सेज चल रहे, सो इफ यू वांट अगेन वी कैन यू कैन इनरोल फॉर द क्रैश कोर्स ऑल्सो, क्योंकि कोर्स शॉर्ट है, हम कर सकते हैं. ठीक है, नाउ अब देखिए सेक्शन बी. देखिए सेक्शन बी इज अगेन इट इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन, एंड 2 मार्कर क्वेश्चंस आपके कैसे होते हैं जहां पर आपको बहुत ही प्रिसाइजली आंसर लिखना होता है. ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो मैंने एक पीडीएफ बना के रखा हुआ है, उससे मैं आपको पढ़ाती हूँ. सी, it has a written answers also so that you know how to write the answers, because आपको आंसर्स लिखना ही आना चाहिए, that is the most important thing. Answers are how to write the answers, this should be very important. Now see the answers, आपको कैसे लिखना है. I've already framed the answer so that you can see the question and again get to the answer also, and हम read कर सकते हैं इसको. Now see, ये देखिए बहुत ही case based questions है. जैसे एक question ये पूछा इन्होंने, फरहद runs a small NGO where hundreds of orphans and old age people gets food 3 times a day. ठीक है, तो यहाँ पर ये चैरिटी कर रहा है. ठीक है, ये एक चैरिटेबल सर्विस कर रहा है जहाँ पर वो हेल्प कर रहा है लोगों को. तो हेल्पिंग बिहेवियर इज कॉल्ड एल्ट्रुइज्म. नाउ एल्ट्रुइज्म का हमारी बुक में चैप्टर 6 में फ्रंट पेज पे एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज प्रो सोशल बिहेवियर. ओके, एंड अगेन वन थिंग मोर क्लास, यहाँ पर प्रो सोशल बिहेवियर का जो लेटर ऑन कंटेंट आपकी बुक में था वो कट चुका है, दैट इज अ डिलीटेड पार्ट. ओके, सो दिस पार्ट इज ओनली ऑफ द 2 मार्कर कंटेंट. ओके, सो द आंसर इज दैट ओनली. फरहद रन्स himself carpet business in the nearby locality, but he says he's a highly passionate about mankind. Now passionate about mankind means helping others, right? Okay, serving others. Okay, so what we call Farhad's attitude here, Farhad's attitude can be described as altruistic, or you can write he's having a pro social behavior. Pro social behavior means helping people. So despite running a carpet business, he devotes his time, resources and passion to running an NGO, providing food to orphans and the elderly, reflecting his selfless concern for others. So this is how you will write the answer. Very short and precise, and here the marking and the keyword is altruistic or the pro-social behavior. So after writing the keyword, just explain in 1-2 lines, and that's all the answer. No need to elaborate and write you know anything which is again not making sense. So again to the precise answer लिखिए इसमें. ठीक है, next question is where Urmila has enrolled into a new skill development course for further enhancement in her career. She never hesitates to new learning modes and to enhance her knowledge. What Rogers? Now देखिए अब यहाँ पर already आपको बता दिया गया है कि इन्होंने Rogers का again definition पूछा है. ठीक है, what Rogers has mentioned about person like Urmila. So Urmila has a skill development course. ठीक है, उसको अच्छा लगता है करियर में enhance करना. Okay, वो new learning modes में जाना चाहती है, वो अपनी knowledge को enhance करती रहती है. नाउ रॉजर्स में हमने क्या पढ़ा था, रॉजर्स हमने पढ़ा है जहां पर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन की बात करते हैं, और ये कहां पर सब था, चैप्टर 2 में. ठीक है, सो वेरी शॉर्ट आंसर, अकॉर्डिंग टू रॉजर्स इंडिविजुअल्स लाइक उर्मिला टेंड टू हैव अ हाई डिग्री ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन व्हिच रेफर्स टू द रियलाइजेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ वंस पोटेंशियल. Okay, they are motivated by the drive for the personal growth and have a strong desire to continuously learn and develop new skills. This is a very short answer, and to the precise answer here keywords are what, again self actualization, referring to the realization and fulfillment of one's potential and personal growth. अगर आप इस चीज को describe करें, answer is correct. Okay, so this is how you will write the answer, because 2 marker question 30 words के ही होते हैं. आप इसमें to the precise and to the correct answer लिखते हैं.
ठीक है, इसी का एक चॉइस क्वेश्चन भी है, दैट इज पेरेंट्स ऑफ सोनम आर वेरी प्राउड ऑफ हर डॉटर एज शी इज द यंगेस्ट यूट्यूबर विद 5 million strong followers. Okay, she is just 7 but has memorized various facts and figures. Explain the two characteristics for her personality. Okay, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या बता सकते हैं? सोनम जो है वो 7 years की है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो काफी फेमस यूट्यूबर है, ठीक है। सो एडवांस्ड कॉग्निटिव स्किल्स, दैट इज द लाइक उसका एक एडवांस कॉग्निटिव स्किल है, उसको बहुत अच्छा बोलना आता होगा, ठीक है। अचीवमेंट ओरिएंटेड है, तो अचीवमेंट ओरिएंटेशन, सोनम्स एबिलिटी टू बिकम द यंगेस्ट यूट्यूबर, दैट इज द अगेन अचीवमेंट ओरिएंटेशन इज द लाइक स्किल ऑफ हर, ठीक है। और ये आपके बिग 5 से लिए गए हैं, ठीक है। बिग 5 में जो हमारा अगेन एक था जहां पर अचीवमेंट ओरिएंटेशन की बात कही गई थी, उससे आप पॉइंटर्स ले सकते हैं, ठीक है। एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब ये है कि वो बहुत अच्छे से वेरियस फैक्ट्स एंड फिगर्स को मेमोराइज कर लेती है, तो शी हैज अ एडवांस्ड अगेन कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको हर एक आंसर एग्जैक्टली एक थ्योरी में ही मिल जाता है, समटाइम्स यू हैव टू बी लिटिल इमेजिनेटिव, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में आपको इमेजिनेशन का यूज करना था कि ये वेरियस फैक्ट्स अगर वो मेमोराइज कर रही है तो उसके पास कौन सा स्किल होगा, ऑब्वियसली एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटीज, ठीक है। और अगर वो यंगेस्ट यूट्यूबर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली शी हैज वेरी अचीवमेंट ओरिएंटेड, कि उसको पता है कि उसको क्या करना है। ओके, सो दिस इज हाउ अगेन यू विल राइट द आंसर। थर्ड क्वेश्चन, Swapnili is an organized girl who does everything according to her own schedule and planning. She also motivates others to do the same. Identify and define the type of her intelligence. Now देखो, ऑर्गेनाइज्ड गर्ल है, अपने अकॉर्डिंगली करती है, प्लान करती है, स्केड्यूल करती है, तो इसका मतलब ये अपने आप को बहुत अच्छा जानती है, ठीक है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एंड अगेन ये मोटिवेट करती है दूसरों को भी, तो कहीं ना कहीं इसकी स्किल ऑफ वर्बल बहुत अच्छी होगी, तो अगेन इंटरपर्सनल। जब आप किसी और के मोटिव फीलिंग थॉट्स को जानते हैं, समझते हैं, तो वो इंटरपर्सनल होता है। इंटरपर्सनल का मतलब क्या हुआ, जहां पर आप लोगों को, दूसरे लोगों को जानते हैं। इंट्रापर्सनल क्या होता है, जहां पर आप खुद को जानते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही, ठीक है। सो आप दोनों को थोड़ा थोड़ा समझा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, this is a very direct question. Explain any two features of self report measures test. Again तो subjectivity, क्योंकि हर इंसान अपने factual narrations अलग लिखता है, ठीक है। So participant provide their own perceptions, beliefs and attitude according to their personal biases. तो ये आपका एक फीचर हो जाता है। दूसरा होता है accessibility self reports की, जैसे कि again it is easy to administer and can be conducted through questionnaires and interview, क्योंकि ये आपके MCQs क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। MCQs क्वेश्चन का ड्रॉबैक ये है कि वहां पर एक्वेसेंस या सोशल डिजायरेबिलिटी मिल सकते हैं, जो लिमिटेशंस हमने सेल्फ रिपोर्ट में पढ़ी थी। बट यहाँ क्वेश्चन टू फीचर्स का है, लिमिटेशंस का नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आप सेल्फ रिपोर्ट के फीचर्स बताएंगे, लिमिटेशंस नहीं बताएंगे, ठीक है। नाउ now this is a very again interesting question. Name psychological disorder where an individual behaves temporarily in two different and opposite ways at the same time. ठीक है, देखो, इंडिविजुअल बिहेव कर रहा है टेम्परेरी, ठीक है, टू डिफरेंट एंड ऑपोजिट वे में, और वो भी सेम टाइम में। तो सिंपल सी बात है, ये डिसोसिएशन की बात करते हैं, ठीक है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, फॉर्मली नोन एज मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इज द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और इसको समझा दीजिए, ठीक है। दिस इज अ 2 marker कंटेंट, एंड व्हेन आई टीच आई ऑलरेडी टोल्ड माय स्टूडेंट डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, डीआईडी, डिसोसिएटिव फ्यूग, ये सब 2 marker में आ सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज विकैरियस लर्निंग। विकैरियस लर्निंग चैप्टर 5 में है, ठीक है, बिहेवियर टेक्निक्स के अंडर। सो विकैरियस लर्निंग इज लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिवॉर्डिंग स्मॉल चेंजेस इन द बिहेवियर इन विच द क्लाइंट ग्रेजुअली लर्न टू एक्वायर द बिहेवियर ऑफ द मॉडल। लेट सपोज किसी ने अपना मॉडल बनाया है, रोल मॉडल, अगर वो उसके जैसे कभी भी बिहेव करता है, तो उसके उस गुड बिहेवियर पे उसको अगेन एक रिवॉर्ड मिलता है। सो दैट काइंड ऑफ लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स इज कॉल्ड विकैरियस लर्निंग। So this is again the question set of section A and section B. इसके बाद again I will be uploading my section C, D and E, जो भी हमारे question के patterns होते हैं। And this question paper is again very important. बहुत अच्छा question paper है। I will be uploading soon the later again part of this question paper. So again stay tuned to our channel, and now I will be very much updated with this channel to again share all the questions. In history also I have made
some very good questions, source based questions. तो कोई भी डाउट है बच्चों, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। एंड बोर्ड्स आपके आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट, डू नॉट पैनिक, एंड जस्ट आप अच्छे से पढ़ते रहिए। एनी डाउट, वी आर देयर फॉर यू to help you all. So if you like this video, please do like, share and subscribe this channel, and like this video also, and share with your friends, so that again they can also get this good questions from our side. Thank you so much.